Hello, dear students. Today we are going to see a very fundamental concept in abstract algebra that is called as a vector spaces. At the inception and before to start vector spaces, if we look at this title, then the first word is vector, and might be we are learning about the vectors from 11th standard, mostly in physics. So in the physics, to represent a physical quantity, we are using vectors. And vector in three dimension mostly written as like this: a bar. This bar represents it is a vector quantity, and you are writing something 3i cap plus 4j cap plus 5k cap. This cap indicate the unit vectors along x, y and z axis. Now this is a vector already we have seen. हमें इस वेक्टर कोई आदत है और ये फिजिक्स में हम मोस्टली यूज करते हैं. तो अगर इस वेक्टर को हमने इस फॉर्मेट में लिखने के बजाय द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 3, तो यहाँ इस ब्रैकेट में लिखा एज अ फर्स्ट कंपोनेंट. सेकंड कंपोनेंट इज 4, तो हमने यहाँ लिखा, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज 5. तो ये एक थ्री ट्यूपल तैयार हो गया. जैसे ऑर्डर पेयर में दो एंट्रीज होते हैं, दैट विल बी द element of the plane, and this is a point in the space. And if this point, if you join with origin, then whatever vector you are getting, that is represented by a bar. Now the interesting thing is this first component, that is 3, it is a real number, so it comes from the set of real numbers, right? The second component, that is also a real number, therefore it is also coming from set of real numbers. And third one is also real number, so definitely it is coming from again a set of real numbers. So if we take its Cartesian product, then this element is a member of set of this Cartesian product R cross R cross R. And there are infinite elements in this set which are looking like this, three tuple. Okay. Now, so क्या ये 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने लिया उसके जगह हम 10 बार ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं. तो यहाँ पर कितने कंपोनेंट आएंगे? 10. अगर आपने इस R का 100 टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो आपके उस एलिमेंट में, उस ट्यूपल में कितने कंपोनेंट आएंगे? 100. तो ये जो है इस वेक्टर को जो हमने पढ़ा है, इट इज वन ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेक्टर, जो इस तरीके से, इसको हम यूजुअली यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं. व्हाट इज दिस? यूक्लिडियन स्पेस. तो फिजिक्स में मोस्टली जो भी वेक्टर्स हम यूज करते हैं वो यूक्लिडियन स्पेस के होते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, instead of taking set of real numbers and its a Cartesian product and this type of tuple, if we take any set of polynomials, maybe you can take set of matrices, maybe you can take anything, तो क्या वो सेट का एलिमेंट जनरल वे में वेक्टर हो सकता है? एंड द आंसर इज यस, हो सकता है. तो वेक्टर बनने के लिए उसको कुछ चीजों को, कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. और वो चीजें क्या है, वो कैसे वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये सारी चीजें हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वेक्टर स्पेसेस.
तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि वेक्टर मतलब ऐसा ही होता है. नो डाउट इट इज अ वेक्टर, बट इट इज वन ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेक्टर. इसके अलावा भी दूसरे फॉर्म के भी वेक्टर हो सकते हैं. हमने यूज नहीं किया तो क्या हुआ? हमने यूज नहीं किया है अभी तक फिजिक्स में वगैरह, तो इसका मतलब वो है ही नहीं. ऐसा नहीं होता है. वेक्टर्स बिल्कुल रहेंगे. तो वो क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो यही चीज आपको पढ़ना है इस सेमेस्टर में. ओके. तो अब सवाल ये आता है कि वेक्टर स्पेस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो बेसिकली क्या है. तो आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा. सो इन द ग्रुप थ्योरी व्हाट यू हैव डन, वी हैव considered one non-empty set denoted by G and one binary operation along with that set for making algebraic structure. So addition, subtraction, multiplication or any kind of binary operation आप इसके साथ जोड़ दोगे. It is denoted by star. And if this algebraic structure will satisfy four conditions: closure property, existence of identity, existence of inverse, and associative law, then this structure is called as what? Group. ये हमने ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है. After that, we have taken another non-empty set denoted by R, and इस पे एक बाइनरी ऑपरेशन कंसिडर करने के बजाय हमने दो ऑपरेशंस को कंसिडर किया था. एक था एडिशन और दूसरा था ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन. तो ये थोड़ा सा बिग अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना था और इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में दो बाइनरी ऑपरेशंस थे. और व्हेन दिस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर विल सैटिस्फाई 8 कंडीशंस, अगर आपको याद आते होंगे रिंग के कंडीशंस, then this algebraic structure we can call as a what? Ring. ये भी हमने पिछले सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ा है. Now in this semester we are going to study vector space. So for that purpose again we have to take a non-empty set that is denoted by any letter, but here I am considering V. और इस पे आपको दो ऑपरेशन लेने होंगे. एक होगा एडिशन और दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन. लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन में और इस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस? कि यहां जो मल्टीप्लिकेशन है ये क्या करता है, रिंग के दो एलिमेंट लेगा x एंड y, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा ये अगेन अ मेंबर ऑफ दैट R. दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी इन द रिंग विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. तो यहां पर ये जो दो एलिमेंट थे x एंड y जिनका आपने मल्टीप्लिकेशन लिया रिंग में, वो थे मेंबर्स ऑफ दैट नॉन एम्प्टी सेट R. यहां पर ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन नहीं है. यहां पर ये जो v है उसमें से एक एलिमेंट लेना है. मान लीजिए आपने एक v लिया, एक एलिमेंट लिया v का, और दूसरा एलिमेंट जो है वो v से नहीं लेना है. समझ रहे हैं आप डिफरेंस? यहां पर दोनों एलिमेंट r के ही थे और उनका मल्टीप्लिकेशन आपने लिया. यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो somehow different than this multiplication. So to understand what type of the multiplication it is, you take one element from the V and you take another element from a field, not V, from the field. तो इसके लिए आपको एक फील्ड भी कंसिडर करना पड़ेगा और फील्ड आप फील्ड ऑफ रियल नंबर्स ले सकते हो, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले सकते हो और एनी फील्ड यू कैन टेक. तो उस फील्ड का जो एलिमेंट रहेगा वो अल्फा से डिनोट करेंगे.
और इनका मल्टीप्लीकेशन अगेन कहाँ रहेगा, V में। तो ये डिफरेंस है, और ये जो फील्ड का मेंबर है दैट इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड देयरफॉर दिस मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड एज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, मतलब एक एलिमेंट V का एक एलिमेंट फील्ड का, और उनका मल्टीप्लीकेशन आप करोगे। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशंस आपको समझ में आ गए। एडिशन यूजुअल है जो हम ऑर्डिनरी वे में करते हैं। अब ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है और एक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज said to be vector space if this algebraic structure will satisfy some conditions. तो what are those conditions? So number one, अगर इस स्ट्रक्चर को वेक्टर स्पेस बनना है तो उसने कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। नंबर वन कंडीशन कि ये जो V है और ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, इन दोनों ने मिलकर, सिर्फ ये दोनों ने मिलकर अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए, इज एन अबेलियन ग्रुप। एंड यू नो दैट अबेलियन ग्रुप में कितने कंडीशन होते हैं, 5। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, existence of identity, existence of inverse, and fifth condition is commutative law with respect to addition. A plus B is equal to B plus A, like that. तो ये पांचों कंडीशन V और प्लस ने करनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू जो है वो है कि आप क्या कीजिए, एक एलिमेंट जो है फील्ड से लीजिए। वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए यू हैव टू assume or you have to consider one field, any field denoted by F। तो एक एलिमेंट आपने लिया फील्ड से, दैट इज अल्फा, और उसका मल्टीप्लीकेशन किया आपने इस ब्रैकेट के साथ, और इस ब्रैकेट में दो एलिमेंट का एडिशन होगा V का, तो यहां आएगा V1 प्लस V2, और इसका जो आंसर है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के तरह होगा, अल्फा टाइम्स V1 प्लस अल्फा टाइम्स V2। ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि आपने यहां एक एलिमेंट फील्ड का लिया था, अब आप दो एलिमेंट लीजिए फील्ड के, अल्फा एंड बीटा। और फील्ड में ऑलरेडी 11 कंडीशंस होते हैं, आपने पढ़ा है पिछले सेमेस्टर में, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो इन दो एलिमेंट जो फील्ड से लिए उनका आप फील्ड के हिसाब से जो बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन वो लीजिए। कीप इन माइंड ये जो एडिशन है वो ये ऑपरेशन के जैसा है, लेकिन ये दोनों को ऐड करता है फील्ड के एलिमेंट को। तो फील्ड भी तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी एडिशन होता है, तो वहां जिस तरीके का एडिशन बोला गया है वो एडिशन ये है, ये नहीं है। समझ रहे आप? तो ये फील्ड का एडिशन है, और इसको आप जब मल्टीप्लाई करते हो V के किसी एलिमेंट से, तो आपका आंसर आना चाहिए अल्फा टाइम्स V, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, प्लस बीटा टाइम्स V। तो यहां पर खास बात आपको ये जरूरी है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो फील्ड का है, और यहां जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में जो दिया है वो है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप बोलेंगे कि एडिशन एडिशन तो सेम होता है, क्या फील्ड का और क्या V का। फील्ड आपने कौन सा लिया है, आपने अगर मैट्रिसेस का फील्ड लिया होगा तो दो मैट्रिसेस का एडिशन हमारे जैसा नहीं होता है ना, यूजुअल नंबर के एडिशन जैसा। तो इसलिए जब आपका फील्ड मैट्रिसेस का रहेगा तो क्या होगा, यहाँ का एडिशन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के हिसाब से काम करेगा, और यहाँ पर आपने V जो है वो एलिमेंट्स लिए हैं कुछ ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी एडिशन है, तो ये एडिशन ऑर्डिनरी होगा। तो दैट इज द कंसेप्शनल डिफरेंस। ओके, नंबर 4 पे है कंडीशन कि एक एलिमेंट फील्ड का लेंगे आप, ब्रैकेट में आप दूसरा एलिमेंट फील्ड का और मल्टीप्लाई करेंगे V के एलिमेंट से, तो इट शुड बी इक्वल टू अल्फा बीटा टाइम्स V। ये इस तरीके की फोर्थ कंडीशन है। और फिफ्थ कंडीशन ये है कि 1 जो यूनिटी होता है फील्ड में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
और उसको आप v के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर अगेन v आएगा। तो अगर कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर v प्लस डॉट corresponding to a field f satisfy these 5 conditions, एक्चुअली ये 9 conditions है क्योंकि एबिलियन में ऑलरेडी 5 conditions आ जाते हैं यहाँ पर एबिलियन में, और ये 4, तो टोटल 9 conditions को जब ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करेगा देन वी कैन से दैट दिस स्ट्रक्चर इज अ वेक्टर स्पेस। और ये फिजिक्स में जो हम यूज करते थे वेक्टर, उसमें वी आपने लिया था आर क्रॉस आर क्रॉस आर, यहाँ समझा आप? तो जरूरी नहीं है कि आर क्रॉस ही लिया जाए, इसलिए इन पर्टिकुलर केस व्हेन यू टेक v इज इक्वल टू ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ r, देन व्हाटएवर वेक्टर स्पेस विल बिकम दैट इज वी आर यूजिंग इन द फिजिक्स। तो आर क्रॉस आर के जगह पर आप कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले सकते हो तो मैथमेटिक्स में, और अगर वो स्ट्रक्चर ये 9 कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो स्ट्रक्चर वेक्टर स्पेस बनेगा। सो दैट इज द गुड थिंग। इसलिए जो डेफिनेशन हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो एक कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे हम लेंगे। लेकिन इन मैथमेटिक्स नाउ अगर हमने वेक्टर स्पेस डिफाइन किया है और हमें कोई सवाल पूछता है कि व्हाट इज अ वेक्टर, now we can say that vector is an element of any vector space। किसी भी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को वेक्टर कहा जाता है, राइट? ओके, तो ये हो गई प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। नाउ फर्स्टली वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेस। तो एग्जांपल्स को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहां पर एक example number 1, suppose I am considering a field, okay, so k is a field, k is a field, any field। अब आपको पता है कि फील्ड जब हम लेते हैं तो उसका एलिमेंट स्केलर माना जाता है वेक्टर स्पेस में, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, हमने एक फील्ड लिया जिसका नाम है k, और उस k का एक सब फील्ड लिया, f is a subfield of k। वी कैन से दैट f is, जैसा सब ग्रुप होता है, सब रिंग होता है ना, वैसे इज f इज अ सब फील्ड ऑफ k। ठीक है, तो f छोटा हो गया, छोटी फील्ड, और k उससे बड़ी फील्ड है। तो ये जो बड़ा वाला फील्ड है, देन दिस k इज अ वेक्टर स्पेस। थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है हमारे लिए क्योंकि फील्ड का एलिमेंट तो स्केलर होता है, तो कैसे बोल रहे हो आप? तो फील्ड लिया हमने और उसका सब फील्ड भी हमारे पास है, तो k जो बड़ी फील्ड है वो वेक्टर स्पेस बनेगी ओवर दैट स्मॉलर फील्ड, ओवर द फील्ड f। So this is a example, and we can prove easily how this k is becoming vector space over this f। तो देखिए, वेक्टर स्पेस अगर प्रूव करना है हमें तो क्या करना होता है, वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हमें दो बाइनरी ऑपरेशंस लगते हैं, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर जो f है उसके एलिमेंट हम एज ए स्केलर ट्रीट करेंगे और k के एलिमेंट को हम v1 v2 यानी वेक्टर के जैसा प्रूव करेंगे और कोशिश करेंगे उन 9 कंडीशंस को फुलफिल करने की जिसकी वजह से ये वेक्टर स्पेस बनेगा। तो k इज ऑलरेडी फील्ड, और फील्ड में देखिए एडिशन के रिस्पेक्ट में वो अबिलियन ग्रुप रहता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो अबिलियन ग्रुप रहता है, मतलब 5 और 5 10 कंडीशन हो गए, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है उसमें, इसलिए 11 कंडीशंस वाला जो होता है वो फील्ड होता है। तो k अगर फील्ड है तो ऑलरेडी वो 11 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, उसमें के पहले 5 कंडीशन तो अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस के हैं। Therefore यहां आप लिख सकते हो कि since k is a field, since k is a field, therefore this k and addition binary operation is an abelian group। ये तो
प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो तो रहेगा ही। इज एन व्हाट अबिलियन ग्रुप। तो पहले 5 कंडीशन वेक्टर स्पेस की जो जरूरी थे वो तो प्रूव करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है। अब अगली जो कंडीशन थी उसमें आपको लेना था 2 एलिमेंट फील्ड के स्केलर। तो हमने लिया लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू एफ स्केलर्स, और एक एलिमेंट लेना है आपको के से, तो आप उसको नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने एक्स नाम दिया, जरूरी नहीं कि वी ही दे, एक्स बिलोंग्स टू के। Now we have to show that, that is our claim, that we have to prove that alpha plus beta, not this, ये अगली कंडीशन है। पहली जो कंडीशन है वो एक काम करते हैं, x और y दो एलिमेंट लेते हैं k से, x एंड y बिलोंग्स टू k। तो जो कंडीशन है वो ये है कि क्लेम इज अल्फा एक लेना है और इधर उस के दोनों एलिमेंट को एडिशन करना है, और इसका आंसर आपको प्रूव करना है अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू वाई। ये कंडीशन थी, कंडीशन नंबर सेकंड वेक्टर स्पेस। नाउ हाउ वी कैन प्रूव दिस? इट्स वेरी सिंपल। अल्फा इज अ मेंबर ऑफ फील्ड, दिस एफ इज अ सबसेट ऑफ के, बिकॉज वो सब फील्ड है, तो ऑटोमेटिकली जो एफ का मेंबर होता है वो के का मेंबर रहेगा ही रहेगा। जैसा एफ महाराष्ट्र है, के इंडिया है, तो मेंबर ऑफ महाराष्ट्र इज ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ इंडिया। सो अल्फा बिलोंग्स टू व्हाट? के। And therefore, in the left hand side, when I will write this alpha times x plus y, this alpha is also member of k, x is a member of k, y is a member of k, means all three are member of k, and k is what? Field. And when it is a field, it must satisfy 11 conditions, and one of the condition is distribution law. So according to using the help of distribution law in the field k, we can write this as a alpha x plus alpha y. तो ये हमने यूज किया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो ऑलरेडी सेटिस्फाई होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन के, इन फील्ड के। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगला जो क्लेम रहेगा हमारा वो रहेगा इसको प्रूव करने के लिए वेक्टर स्पेस, कि आपको यहां पर लेना है दो स्केलर्स अल्फा प्लस बीटा, और यहां लेना है एक वेक्टर। वेक्टर मीन्स के का एलिमेंट, एंड यू हैव टू शो दैट अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू शो दिस? इट्स वेरी सिंपल। again this x is a member of k, alpha and beta both are members of f, f is a subfield of k, that means every element of f is a member of k, therefore these alpha and beta will become members of what? K. Now in the LHS, this LHS, alpha is a member of k plus beta is a member of k, and this x is already a member of k, and k is a field, so it must satisfy again distribution law. This is called as a right distribution law, क्योंकि right से multiply हो रहा है। So we can write this as a alpha x plus beta x, again by using what? Distribution law in k. तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब बचा है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में अगर आपको याद है तो आपको ये प्रूव करना है, क्लेम टू शो दैट अल्फा टाइम्स बीटा एक्स is equal to alpha beta x. Right? Now how we can prove this? Again, alpha and beta are the members of f, f is the subfield of k, therefore alpha beta will become a member of k, and member of k जब आप बनते हो तो तीनों एलिमेंट अल्फा बीटा एक्स क्या बनेंगे? के एलिमेंट बनेंगे। k इज अ फील्ड, और k जब फील्ड बनता है तो उसमें 11 कंडीशंस होते हैं, उसमें 5 कंडीशंस एडिशन के अबिलियन ग्रुप, 5 कंडीशन मल्टीप्लिकेशन के अबिलियन ग्रुप। तो वो जो 5 कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन के, उसमें एसोसिएटिव लॉ भी होगा। तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और क्योंकि ये के मेंबर्स है, के ऑलरेडी फील्ड है, तो यहाँ ये अल्फा ये बीटा एक्स को आप अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ अल्फा बीटा एक्स लिख सकते हो, और इसका रीजन रहेगा विच लॉ? एसोसिएटिव लॉ इन के, बिकॉज के इज अ फील्ड। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया।
अब जो अगली कंडीशन है वो है लास्ट कंडीशन कि claim to show that 1 into member of k, उसको हम x लेते हैं तो ये भी x आएगा. तो सिंस 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का आंसर हमेशा x ही आता है, उसको जिस जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वही नंबर आ जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन k, इस लॉ का यूज करके आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो. इसीलिए any field is becoming what vector space over its subfield. तो हमेशा याद रखिए, ये तो प्रूव हमने कर दिया, और हमेशा याद रखिए कि कोई भी फील्ड वेक्टर स्पेस बनती है with respect to its subfield. Okay, now we are going to solve another example, जो आपने अगर फिजिक्स में देखा था उस टाइप का एग्जाम्पल. कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखेंगे. लेट एफ बी अ फील्ड, एनी फील्ड, लेट एफ बी अ फील्ड and v is defined like this. n tuples मतलब कंपोनेंट, पहला दूसरा तीसरा डॉट 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 n कंपोनेंट. जैसा एक बार डिफाइन किया था हमने, उसमें 3 कंपोनेंट लिए थे. तो जरूरी नहीं कि 3 ही ले, आप 100 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, n कंपोनेंट्स भी ले सकते हो. कंपोनेंट फील्ड के ही होते हैं. तो ये f अगर फील्ड है तो हम यहाँ पर जैसे x1 इज अ मेंबर ऑफ f, जो कि पहला कंपोनेंट बनेगा. x2 इज अ मेंबर ऑफ f, दूसरा कंपोनेंट बनेगा. और ये आखिर का nth कंपोनेंट बनेगा. और इसमें आपको ये बोलना है कि these x1 x2 xn xi आर द मेंबर्स ऑफ व्हाट दिस फील्ड. तो फील्ड के मेंबर्स को लेकर इसने इस तरीके का एक ब्रैकेट बनाया जिसमें n एंट्रीज है. तो ये हो जाता है n ट्यूपल. क्या बोलते हैं इसको? n ट्यूपल, n ट्यूपल्स. और ये इस तरीके का सेट रहेगा. तो इस फील्ड के ऊपर क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा? सो लेट अस चेक. राइट. तो नंबर 1 आपको प्रूव करना है कि ये V एडिशन के साथ क्या बनता है? अबिलियन ग्रुप. 5 कंडीशन. अब यहां तो वी नो दैट बोल नहीं सकते क्योंकि यहां तो करना ही होगा. तो हाउ टू ऐड एलिमेंट्स ऑफ दिस V, मींस ये n ट्यूपल्स को कैसे ऐड करना है. तो मान लीजिए अगर आपका एक मेंबर इस V का इस तरीके का है, x1 x2 एंड xn, ठीक है. और दूसरा एलिमेंट जो है वो इस तरीके का है, y1 y2 एंड nth एलिमेंट इज y1. ये V के n ट्यूपल्स है और इसको ऐड करेंगे आप. तो इसका एडिशन जो है वो अगेन n ट्यूपल ही आना चाहिए. तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का एडिशन करके आप नया n ट्यूपल बना सकते हो. जैसे पहला एडिशन, तो यहाँ आएगा x1 plus y1 the first component of your answer. x2 plus y2 is the second component of your answer. And in this way you will get the last component is xn and plus y. इस तरीके का एडिशन आपको करना है टू शो दैट v एंड प्लस इज अबिलियन ग्रुप. अबिलियन ग्रुप तो प्रूव करना होगा. तो देखिए n ट्यूपल सारे एलिमेंट f के, n ट्यूपल सारे एलिमेंट f के, और इसको एडिशन करने के बाद भी n ट्यूपल आया. और ये भी सारे एलिमेंट f के ही रहेंगे क्योंकि f इज अ फील्ड. फील्ड में एडिशन का क्लोजर प्रॉपर्टी होते ही रहता है. तो ये गारंटी है कि x1 plus y1 इज अ मेंबर ऑफ f. तो ये अगेन मेंबर क्या हो जाएगा? v. तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन यहां पर सेटिस्फाई हो गई. फिर एसोसिएटिव लॉ आप आराम से कर सकते हो. एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको मैं आपको एज अ होमवर्क लीव कर रहा हूं. आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हो. तीसरा जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. तो फील्ड में देखिए 0 एलिमेंट होता है. तो हमने फील्ड का पहला एलिमेंट 0 लिया, दूसरा भी 0 लिया और nth भी सारे 0 0 लिए. तो इट इज अ मेंबर ऑफ व्हाट? V. n ट्यूपल बन गया, f का ही मेंबर है. एक ही एलिमेंट रिपीट कर सकते हो आप. तो हमने 0 को रिपीट किया, तो ये V. और इसको अगर आप किसी भी V के एलिमेंट के साथ ऐड करते हो, जैसा कि अगर मैंने ये एलिमेंट लिया एक V का और उसको ऐड करते हो इस एलिमेंट के साथ, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ दिस टाइप ऑफ एडिशन आपका आंसर आएगा x1 plus 0 दैट इज अगेन x1
x2 प्लस 0 दैट इज x2 एंड सो ऑन, और आपको मिलेगा xn। तो देखिए जिसमें आपने ऐड किया वो आंसर तो चेंज नहीं हुआ, मतलब ये एलिमेंट लाइक आइडेंटिटी काम कर रहा है v प्लस में। तो देयरफॉर एग्जिस्टेंस भी हो गया, ये आइडेंटिटी का काम करेगा। और आप जानते हो कि अगर ये x1 जो है वो फील्ड का मेंबर है, तो फील्ड में हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट होता है, एडिटिव इनवर्स, सॉरी, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट होगा, एफ में रहेगा ही रहेगा। इसलिए जब आप कोई एलिमेंट इस तरीके का लेते हो, तो दूसरा एलिमेंट आप आराम से इस तरीके का ले सकते हो, क्योंकि ये एलिमेंट एफ में एग्जिस्ट रहेंगे, ये भी वी में रहेगा। और ये दोनों को अगर आप ऐड करते हो, जैसा x1 x2 xn, ये ओरिजिनल एलिमेंट v का, इसमें आप ऐड करते हो ये -x1 -x2 एंड अप टू -xn, तो आपको आंसर मिलेगा x1 x1 दैट इज 0 0 एंड सो ऑन 0। व्हाट इज दिस आइडेंटिटी, मतलब एक v के एलिमेंट में आपने दूसरे v का एलिमेंट ऐड किया और आपको आंसर उस v की आइडेंटिटी मिल रही है, मतलब ये इनवर्स हो गया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी यहाँ डेफिनेटली क्या होता है, तो ये ग्रुप बन गया। कम्यूटेटिव लॉ आराम से आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाई कर सकते हो, तो नो डाउट कि ये V जो n ट्यूपल्स का कलेक्शन है वो बनता है अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आफ्टर दैट वेक्टर स्पेस के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं उसमें की एक कंडीशंस ये है कि आप कोई भी दो एलिमेंट v के लीजिए, जैसे कि मैंने ये लिया x1 x2 xn एंड y1 y2 yn, उनको आप ऐड कर दीजिए, मतलब x इज इक्वल टू हम लेते हैं x1 x2 xn, इसको हम x से डिनोट करते हैं, और y को डिनोट करते हैं y1 y2 y1, ठीक है, दिस इज द n ट्यूपल yn। और अब आपको प्रूव करना है कि any scalar alpha from field into x plus y is equal to alpha x plus alpha y। ये कंडीशन है वेक्टर स्पेस की नंबर 2। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको LHS लिखना है, इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना होगा, LHS लिखना होगा, LHS alpha, and this is x means x1 y1, sorry, x1 x2 and xn, and plus y means y1 y2 and yn, ये आपने LHS में लिखा। According to rule of addition, you can write this is x1 plus y1 as the first component, x2 plus y2 as the second component, and so on. And last one is xn plus what, yn। और रूल ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो अल्फा जो स्केलर है वो जब किसी एन ट्यूपल को मल्टीप्लाई होता है, तो याद रखिए वो हमेशा सारे कंपोनेंट को मल्टीप्लाई होगा। तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये जब अंदर जाएगा तो ये कुछ एन ट्यूपल देगा लाइक दिस, अल्फा फर्स्ट कंपोनेंट को मल्टीप्लाई होगा, कॉमा अल्फा सेकंड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई होगा, and in this way you can multiply this alpha to the last component, that is xn plus yn, and again this is we can use distribution law, तो ये बनेगा alpha x1 plus alpha y1 is the first component, alpha x2 plus alpha y2 is the second component, and finally we will get alpha xn plus alpha yn is the last component। अब इन कंपोनेंट को जो एडिशन में दिख रहा है उसको आप अलग भी कर सकते हो, दो एन ट्यूपल्स को आप ऐड करके एक एन ट्यूपल बना सकते हो, तो एक एन ट्यूपल को आप बाइसेक्ट करके दो एन ट्यूपल के एडिशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये जो एडिशन है इसको मैं लिखता हूँ अल्फा x1 अल्फा x2 लाइक दिस, अल्फा xn plus alpha y1, second is alpha y2 and last is alpha yn। और इसमें से आप अल्फा कॉमन लेंगे पहले ट्यूपल में से, तो अल्फा, और यहाँ क्या बचेगा x1 x1 x2 xn, दैट इज व्हाट x, यहाँ से अल्फा कॉमन लेंगे और जो बचेगा n ट्यूपल y1 y2 yn, उसको हमने बोला था y, तो इट इज y, एंड लुक एट दिस, दिस इज योर व्हाट राइट हैंड साइड। तो ये कंडीशन भी हमें यहाँ पर प्रूव करके बता दिया कि ये प्रूव हो जाती है। तो
दूसरे जो कंडीशंस है वेक्टर स्पेस के, अभी 3 बचे हैं, वो भी आराम से आप प्रूव कर सकते हो इसी फैशन में। और फिर ये जो बनेगा, आप बोल सकते हो कि ये V सेटिस्फाई कर रहा है ऑल द कंडीशंस ऑफ वेक्टर स्पेस, देयरफॉर n ट्यूपल वाला जो V है इज कॉल्ड एज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। ठीक है, अब हम देखते हैं और एक एग्जाम्पल जिसमें ये बोला गया है कि कंसिडर अ फील्ड। एग्जाम्पल नंबर 3, let F be a field, let F be a field and इस फील्ड के एलिमेंट्स को लेकर हम एक पॉलिनोमियल बनाएंगे और उसको V जो है इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन X। क्योंकि पॉलिनोमियल देखिए ऐसे रहती है, पॉलिनोमियल जैसे कि सपोज P ऑफ X इज वन पॉलिनोमियल A0 प्लस A1X प्लस A2X स्क्वायर लाइक दिस। तो यहाँ पर X इनडिटर्मिनेट है और ये A0 A1 A2 ये स्केलर्स रहेंगे, कोएफिशिएंट रहेंगे, तो वो कहाँ से आएंगे, वो फील्ड से आएंगे। ये फील्ड जो आपने कंसीडर किया है, तो ये इस टाइप के एक्सप्रेशन आर कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल, दीज आर द मेंबर्स ऑफ दिस एंड ये V भी इस फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाता है। तो मैंने कहा था कि फिजिक्स में जो वेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं आई जे के फॉर्म में, बस वही वेक्टर की दुनिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले सकते हो, जैसा अभी हमने यहाँ पॉलिनोमियल का सेट लिया और ये डेफिनेटली वेक्टर के सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा एंड दैट्स व्हाई वी कैन develop a new vector space with different type of elements। शर्त ये है कि उस नॉन एम्प्टी सेट में जिसको आप वेक्टर स्पेस बुलाना चाहते हो, उसने वेक्टर स्पेस के जो कंडीशंस है, 9 कंडीशंस, उनको फुलफिल करना चाहिए। तो ये आप इजीली आप इसको चेक कर सकते हो। दिस इज फॉर योर होमवर्क दैट यू कैन चेक वेदर दिस टाइप ऑफ, तो इसमें एलिमेंट्स आपको ऐसे लेने होंगे, जब मान लीजिए कि P एंड Q आर द मेंबर्स ऑफ V अगर आप लेते हो और V है सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स इन X, तो P इज इक्वल टू आप लीजिए A0 प्लस A1X प्लस A2X स्क्वायर, राइट। और जनरल वे में लेना है तो AN(x)(n), और आप Q ले सकते हो B0 प्लस B1X प्लस B2X स्क्वायर। इन दिस वे आप ले सकते हो BN(x)(n). तो ये दो एलिमेंट रहेंगे आपके V के एनी, और F के एलिमेंट आप अल्फा बीटा लेंगे, दीज आर दी ट्रीटेड एज स्केलर्स, और आप प्रूव करोगे कि ये अबेलियन ग्रुप बनता है। यू हैव टू चेक दिस, ये बनेगा ही 100% अबेलियन ग्रुप। तो 5 कंडीशन यहाँ फुलफिल हो जाएंगे वेक्टर स्पेस के। फिर आपको प्रूव करना है अल्फा इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू अल्फा पी प्लस अल्फा क्यू। ये भी आप आराम से LHS को सिंप्लीफाई करके प्रूव कर सकते हो। देन यू हैव टू शो दैट अल्फा प्लस बीटा इंटू एनी वन एलिमेंट ऑफ V, दैट इज P इज इक्वल टू अल्फा पी प्लस बीटा P। ये भी आप LHS को सिंप्लीफाई करके मैनेज करके RHS तक पहुंच सकते हो। देन यू हैव टू प्रूव दैट अल्फा टाइम्स बीटा इंटू P इज इक्वल टू अल्फा बीटा टाइम्स P। ये भी आप आराम से प्रूव कर सकते हो। एंड 1 इंटू पी इज इक्वल टू पी, ये तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है बिकॉज 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, वो आंसर देता ही है। बस शर्त ये है कि वो 1 फील्ड में होना चाहिए, और वो फील्ड है तो वहां पर यूनिट एलिमेंट रहेगा ही रहेगा। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हमने पढ़े और बड़ी अच्छी शुरुआत की हमने वेक्टर स्पेस को पढ़ने की। तो वेक्टर स्पेस एक ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को आप रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हो। दिट इज द बिगेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। और जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स में आप हर वक्त एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़े। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर। आप किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को वेक्टर स्पेस बुला सकते हो, शर्त यह है कि उस नॉन एम्प्टी सेट ने किसी फील्ड के साथ इन 9 कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे हम रुक जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो भी वेक्टर स्पेस के रहेंगे वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए खुद का। गुड बाय।